recording, and once the session is over you will get the recording over a mail id, and as well as you will get the YouTube link so that you can watch and you can see the videos. Okay. Okay, this is going to be a process. After the class, within 2 hours you will get the recording, and also I will provide the soft material. Okay, and I will give you the mock test. Okay, and some interview related question that is going to be asked. मतलब ये वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 50-70% आपसे पूछे जाएंगे इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, सो सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वाई यू शुड लर्न डेवऑप्स फ्रॉम मी. गाइज, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो विद इन डेवऑप्स एरिया. Okay, so guys, I am the senior DevOps engineer. I am working previously I was working in the Java developer. Okay, then I switched from Java developer to the AWS cloud and DevOps, and total I have 10 plus year experience. You can check my LinkedIn profile as well, which I will share in the WhatsApp group. Okay, and also I have done the 3 AWS certifications in one attempt, as well as I have done the Kubernetes and Terraform certified. These are the DevOps tools, okay, which I'm going to explain you after few times. Okay, and as well as I am doing my job, as well as I am corporate trainer too. I do teaching right now I am doing, so I am corporate trainer too as well. Okay, so in my companies or older companies I have taken the interviews of DevOps, of Java and Linux, AWS. These are the things I have taken the interviews for the students. Okay, and these are the things which I have done so far. This is the companies where I have worked so far out there. Okay, first of all, the important point to be noted before starting the class. This is just a brief about my course which I am going to teach in 4 month. ओके, दिस इज़ द 4 मंथ कैरिकुलम. 4 महीने में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, क्या नहीं पढ़ाऊँगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो. राइट. सो आज के टाइम में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो डेवऑप्स इम्प्लीमेंट ना कर रही हो. नो वन कंपनी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटिंग डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, बिकॉज अभी भी अगर वो पुराने हिसाब से चल रहे होते तो वो डेवऑप्स में ही आप पुराने, जैसे हमारी मेथोडोलॉजी होती है, वाटरफॉल मॉडल होता है, ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजी होती है. 3rd नंबर की में मेथोडोलॉजी है डेवऑप्स. ये 3rd नंबर की मेथोडोलॉजी है. इसमें क्या होता है, जो भी कोई काम होता है सब ऑटोमेशन के थ्रू होता है. काम बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है. सो द रीज़न इज़ प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी हाई एंड ऑटोमेशन इज़ देयर. ओके, नो डेवऑप्स, नो कंपनी कैन सर्वाइव इन रियल टाइम सिनेरियो. ओके, and this is a very good field for the fresher as well, because it is a very high paying job. You can get job easily and with the high paying job, but for the fresher it is little bit tough for the freshers, but we will help you how to get the job if you are the fresher. Okay, and if you are the fresher, आपको थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन ये भी आपको भी श्योर रहना पड़ेगा. अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी भले से आती हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हो, इंग्लिश बोलना जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको आएगी नहीं. तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन इंडस्ट्री. ओके, इन द डेवऑप्स एरिया यू डोंट रिक्वायर एनी प्रायर IT एक्सपीरियंस. इवन यू आर फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और UI UX, ओके, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, AI डेवलपर, वॉट एवर यू आर. ओके, you don't require any IT experience. Even you are fresher, minimum requirement is that you need to learn how to operate the computer. आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए बस. that is a minimum prerequisite. सबसे मिनिमम प्रीरिक्विजिट आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो. ओके, नो नीड टू लर्न और एनी अदर टूल. ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहा होगा कि लाइनेक्स के बिना कैसे होगा. अगर आपको लाइनेक्स नहीं आता है तो भी आप कर सकते हो. उसके लिए हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, हम आपको लाइनेक्स पूरा सिखाएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी. हाँ मनीष, आपको कोई क्वेश्चन है? आपका रेज हैंड है. ओके, नो क्वेश्चन, गुड. ओके, सो व्हाट इज़ द करिकुलम? आई विल शो
व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन 4 मंथ्स। ओके, इसमें आपको जॉब गारंटी प्रोग्राम है कि जॉब गारंटी प्रोग्राम ये है कि आपको जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम आपको हेल्प करेंगे। हमारा एक पर्सनल व्हाट्सएप एक ग्रुप है, प्लेसमेंट ग्रुप, और प्लेसमेंट टीम हमारी अपनी खुद की है, जिसमें हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और जो जो ओपनिंग्स आती रहेंगी हम उस ग्रुप में हम शेयर करते हैं, वो आप उसमें अप्लाई करते रहोगे। इंटरव्यू निकालना आपका काम है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू निकालने से पहले आपके मॉक इंटरव्यू हम आपके लेंगे। 10 इंटरव्यू हमारे मॉक इंटरव्यू रहते हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। बाकी जो रियल इंटरव्यू हो तो वो आपको खुद ही क्रैक करने होंगे, लेकिन प्रैक्टिस हम आपकी करा देंगे पूरी। नो नीड टू हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं है तो भी हम आपको पूरा सिखाएंगे इसमें डेवऑप्स में, ठीक है। प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, प्रोग्रामिंग तब चाहिए होती है डेवऑप्स में जब आप किसी सीनियर लेवल पे जाते हो, जैसे लीड पे चले गए आप, आर्किटेक्ट लेवल पे चले गए हो, तब उस लेवल पे आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल तक 5 साल तक भी आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इज़ नॉट नेसेसरी बट स्क्रिप्टिंग इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो अगर आप 5 साल से ऊपर जाते हो, जैसे लीड पे जा रहे हो, आर्किटेक्ट पे जा रहे हो, तो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, वो पाइथन आनी चाहिए मैंडेटरी, क्योंकि वो पाइथन ऑटोमेशन में यूज़ होती है, ठीक है। बट नॉट एज द मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, यू डोंट रिक्वायर नीड टू बी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। और आज के टाइम में फ्रेशर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ओपनिंग डेवॉप्स में ही है। डेवॉप्स में हाई पेइंग जॉब मिल जाती है आपको, स्टार्टिंग सैलरी आपको 6 लाख से मिल जाती है। ये वेरी भी करता है, 5 लाख 4 लाख 6 लाख 7 लाख, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, बट स्टार्टिंग पैकेज ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपीज़ 6 लाख रुपीज़ आपका रहता है, ठीक है। और आपको अगर अब्रॉड में भी जॉब करनी है तो मेरे कई सारे दोस्त हैं जो अब्रॉड में भी जॉब कर रहे हैं, विदेशों में जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपकी उनकी कंपनी में भी रेफरेंस आपका लगा सकता हूँ। क्लियर आपको करना होगा, हेल्प आपकी हमारी हम करेंगे, लेकिन इंटरव्यू क्रैक आपका खुद ही करना होता है। ये आज के टाइम में सैलरी स्ट्रक्चर रहता है कि अगर 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इसमें आपका 6 लाख का पैकेज आपका रहता है मिनिमम एज अ फ्रेशर, ठीक है। और अगर 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो 8 से 12 लाख का पैकेज आप रहता है। ये ऑन एन एवरेज है पैकेज जो एज अ फ्रेशर रहता है। ये अगर आप जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई, इफ़ यू मल्टीप्लाई 2/4 तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस यू हैव, यू कैन मल्टीप्लाई विद द 4। ये आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका पैकेज आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि यू विल गेट द हाई पेइंग जॉब ऑफ 30 LPA 40 LPA, ऐसा कभी नहीं होता है। 30 LPA 40 LPA तभी मिलता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि इंडस्ट्री पहली बार में आपको 30-40 लाख का पैकेज दे दे, ऐसा नहीं होता है। अगर 30-40 लाख का पैकेज जाना होता है तो वो 8 ईयर एक्सपीरियंस प्लस पे जाना होता है। इससे ज़्यादा आपको पैकेज मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं मिलती है। अगर मैं अमेज़ॉन गूगल की बात करूँ तो बात अलग है, वहाँ मिल जाता है, लेकिन मिड साइज और MNC 99% में यही स्ट्रक्चर रहता है, फ्रेशर को 6 LPA। अगर आप जैसे जावा डेवलपर हैं, आप जावा डेवलपर से बिलोंग करते हैं, अगर आपको 3 का एक्सपीरियंस है तो हम आपको स्विच करा सकते हैं 12 to 16 LPA। या पाइथन डेवलपर है या कोई अन्य सपोर्ट जॉब से हैं या एडमिन जॉब से हैं, ठीक है, कोई भी आप फील्ड में हैं, आपको इसमें जो डेवऑप्स में स्विच करना है उसमें हम आपको करा सकते हैं, ठीक है। उसमें हम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर हम आपको हेल्प कराएंगे उसमें, और आपको 1 साल का आपने डेवऑप्स में काम किया है वो आप मेंशन करके डेवऑप्स में जा सकते हो। बट द शर्त ये है कि आपको डेवऑप्स का काम आना चाहिए। अगर डेवऑप्स का काम नहीं आता होगा तो यू कैन नॉट सर्वाइव। अल्टीमेटली क्लाइंट को यही चाहिए होता है कि जो उन्होंने आपको, मैनेजर ने आपको जो काम दिया है वो आप उसको काम को करके दे सको, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, आप काम को कर सको। डैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इससे पहले जावा में थे, एडमिन में थे, सपोर्ट में थे, कुछ भी आप कर रहे थे, MS फील्ड में थे, MS एक्सचेंज में थे, किसी में भी थे आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको काम आना चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए पूरे, हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट है, 52 लाइव हम प्रोजेक्ट आपको कराएंगे, जिसको करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। इतना आप कर सकते हो 52 लाइव प्रोजेक्ट करने के बाद। इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी क्यों इतना ज़्यादा पैसा देती है डेवऑप्स को।
सबसे ज़्यादा पैसा डेवऑप्स को मिलता है, इससे ज़्यादा पैसा किसी फील्ड में नहीं होता है आज के टाइम में, ठीक है। तो जैसे आपका ये फास्टर डिलीवरी, पहले क्या होता था कि पहले वाटरफॉल मॉडल होता था, उसके बाद एजाइल मेथोडोलॉजी आ गई, तो इसमें बहुत टाइम गैप रहता था कि आज हमने कोडिंग करी है, डेवलपर टीम ने कोडिंग करी है, कोडिंग करने के बाद वो पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम लगा रही हैं, फिर उसके बाद अपडेट कर रही हैं, फिर जीरा टिकट बना रही हैं, जीरा टिकट बनाने के बाद फिर वो दोबारा से उस पर टेस्टिंग कर रही हैं, फिर वो दोबारा से चेंज होके फिर डेवलपर टीम के पास आ रही है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था ये जो फॉलो होता था। लेकिन अब क्या है, डेवऑप्स आने के बाद सब कुछ ऑटोमेट हो गया, सारी चीज़ें ऑटोमेशन आने से वी company got faster delivery, company got higher quality products. Within the same time frame window, you are getting the faster delivery and you are getting the higher quality products. So that's why company is demanding for the qualified excellent DevOps person. Okay, if you are DevOps person, you need to achieve 4 things. Okay, lesser spending, always available. Always available means you are not doing any manual interruption, you are just doing the automating the things. अगर आप नहीं हो, आप मंडे तो आप 2 दिन छुट्टी पे चला गए हो, तो एक डेवऑप्स पर्सन होगा, वो सारा सब कुछ मैनेज कर सकता है टूल्स के जरिए। डेवऑप्स इज़ अ थिंग्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द ऑल द टूल्स, ठीक है। मल्टीपल टूल्स होते हैं जिनके जरिए डेवऑप्स मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है। DevOps is all about resolving all traditional issues and implementing the complete automation. DevOps का सिंपल सा मतलब है कि ये चीज़ों को ऑटोमेट कर देना, जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उनको सिंपली हमने ऑटोमेट कर दिया है ताकि वो चीज़ें अच्छे तरीके से रन हो पाएँ। अगर हमें 10 लोगों की टीम की ज़रूरत होती थी, तो अब हमें सिर्फ एक पर्सन की ज़रूरत हो रही है जो 10 लोगों का काम अकेले कर रहा है। पहले क्या होता था कि टेस्टिंग टीम अलग है, डिप्लॉयमेंट टीम अलग है, ठीक है, और मल्टीपल टीम्स, बिल्ड टीम अलग है, ठीक है। अब क्या हो गया, कोई टीम नहीं बची, सिर्फ एक टीम रह गई है, डेवऑप्स की टीम। वो डेवऑप्स की टीम सारा काम खुद ही कर देती है। अब बिल्ड टीम नहीं है, स्टेज टीम नहीं है, डिप्लॉयमेंट टीम नहीं है, ठीक है, रिलीज टीम नहीं है, आपकी टेस्टिंग टीम नहीं है, ठीक है, ये सारी टीम ख़त्म हो गई है, सिर्फ एक टीम आ गई, डेव प्लस सॉप। वो सारा खुद ही कर लेते हैं, इसलिए पहले 6 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे 1 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए इनका पैकेज हाई रहता है, डिमांडिंग है। 2 प्रकार की मेथोडोलॉजी आज के टाइम में फेमस है। पहले यूज़ होती थी एजाइल मेथोडोलॉजी, नाउ वी आर यूजिंग द डेवऑप्स मेथोडोलॉजी। 99% of the company has switched from agile to DevOps methodology so far. Why? In the agile methodology, we could achieve continuous development. Development means coding. Okay. Like suppose that we got some project, so we are doing some coding. So that is a content development. Okay. Continuous testing. पहले कोडिंग हो रही है, फिर टेस्टिंग हो रही है, फिर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ स्टेज फॉर एजाइल मेथोडोलॉजी। बट इन द डेवऑप्स व्हाट वी अचीव, हमने कोडिंग करी है, कंटिन्यूस टेस्टिंग भी कर दी हमने, और कंटिन्यू इंटीग्रेशन भी कर दिया है, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट भी कर दिया। डिप्लॉयमेंट मीन्स हमने सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि वेबसाइट जब चलती है क्लाइंट के सर्वर पर चलती है, हमने वहाँ पर डिप्लॉय भी कर दिया है, और उसको हम मल्टीपल, जैसे डायनाट्रेस हो गया, स्प्लंक हो गया, किबाना हो गया, ठीक है, उन टूल्स के ज़रिए हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और मॉनिटर हम नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर एक टूल्स हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मॉनिटर करते हैं कि जैसे आपका मशीन है, मशीन का CPU यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी जा रही है, ये सब चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि हम जेनकिंस की पाइपलाइन बनाते हैं। अभी आपको जेनकिंस का नहीं पता होगा, लेकिन जब मैं सिखाऊंगा आपको जेनकिंस, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा जेनकिंस क्या होता है। अभी ये होता है कि जेनकिंस की पाइपलाइन बनाई जाती है, वो विद इन 1 मिनट ये सब काम 1 मिनट में या 2 मिनट में हो जाता है, या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। ये हमारे टूल्स होने वाला डेवऑप्स के टूल्स जो हम पढ़ेंगे इसमें, AWS क्लाउड, लाइनेक्स, गिट, गिटहब। AWS क्लाउड जिस पे हम सारे अपना सारा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम EC2 मशीन बनाएंगे जिस पे हम लाइनेक्स मशीन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और उस पर हम सारा काम उस पर सब हम काम करेंगे। आपके पास AWS अकाउंट नहीं है तो हम अपना खुद का कंपनी का अकाउंट आपको देंगे, उस पर आपको सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होंगे डे बाय डे।
और डेली आपसे अपडेट भी लिया जाएगा ऑन कॉल विथ माई टीम। ओके, गिट हो गया, आपका गिटहब हो गया, ये सोर्स कोड डिपॉजिटरी होती है जिसमें आपका कोड, जिसमें डेवलपर अपना कोड स्टोर करके रखता है। ठीक है, एनसेबल हो गया फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे आपको मल्टीपल, आपके पास 100 मशीनें हैं सपोज दैट, और आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है 100 मशीनों में, तो आप एक कमांड लिखोगे, वो 100 मशीनों में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। ये कहता है एनसेबल। इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, एंड दिस इज़ वेरी ह्यूज, आई विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप। कोई भी अगर आपको एनसेबल में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आज भी होगा तो आई विल आंसर यू। ठीक है, ये वेब सर्वर होते हैं जिन भी वेबसाइट आपकी चलती है। टॉमकैट एक आपका वेब सर्वर है जो जावा के लिए होता है। अगर आपकी जावा लैंग्वेज आपका प्रोजेक्ट है तो आपका टॉमकैट पे चलेगा वो। जेनकिन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट द ऑटोमेट CI/CD पाइपलाइन। ठीक है, जेनकिन के जरिए हम CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे। डॉकर होगा जिसके जरिए हम कंटेनराइज करेंगे एप्लीकेशन को। एक मशीन के अंदर, एक लाइनक्स मशीन के अंदर हम 10, 15, 20 अपनी मशीनें, 10, 15, 20 हम अपनी वेबसाइट चला सकते हैं। वो होता है आपके डॉकर के थ्रू। कुबरनेटिस होता है, जैसे आपके पास मल्टीपल्स कंटेनर्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए आपके पास 100 कंटेनर्स हैं, 100 पॉड है आपके पास। ठीक है, 100 आपकी वेबसाइट चल रही है, उन वेबसाइट को कुबरनेटिस अकेले मैनेज कर सकता है। ओके, एंड मेवन जो बिल्ड करेगा, ग्रूवी स्क्रिप्टिंग हो गई, ये AWS का पार्ट हो गया। टेराफॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ह्यूज है आज के टाइम में। इंडस्ट्री में खुद का टेराफॉर्म का एक अलग इंजीनियर होता है जो सिर्फ टेराफॉर्म मैनेज करता है। ठीक है, जिससे हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हम लिख सकते हैं। इसमें डिप्लॉयमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, मॉनिटर हो गया, रिलीज़ हो गया। ये सारी चीज़ें फास्ट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए होता है। पहले एक एप्लीकेशन को बनाने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लगते थे। आज के टाइम में विदिन 1 मंथ आपकी एप्लीकेशन रेडी होके आ जाती है, जिसमें हम अपडेट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले डेवलपमेंट के लोग होते थे, ये ऑपरेशन की टीम हो गई। इसमें होता क्या था, चैलेंज क्या आता था डेवऑप्स में? चैलेंज ये था कि डेवलपर ने कोडिंग कर ली, मान लो उन्होंने जावा में कोडिंग करी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है, वेबसाइट बनाई है जावा में। अब उसने वेबसाइट तो बना दी, उसकी वेबसाइट उसके लोकल मशीन में सही चल रही है। उसने ये वेबसाइट का कोड ऑपरेशन की टीम को दे दिया कि भाई अब तुम इसको टेस्टिंग कर लो, जो करना कर लो, मेरे कंप्यूटर पे सही चल रहा है। ऑपरेशन टीम अपने सर्वर पे, अपने कंप्यूटर पे चला कर देखती है, वही चीज़ उसके कंप्यूटर पे चल रहा था पर ऑपरेशन टीम के कंप्यूटर पे नहीं चल रही होती वेबसाइट, इशू आ जाते हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का इशू आ जाता है। ठीक है, तो वो ऑपरेशन की टीम कहती है कि तुम्हारा कोड गलत है, तुम्हारा कोड मेरे मशीन में वर्क नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट टीम कहती है हमारे कोड में सही है, तुम्हारे मशीन में दिक्कत है। तो ये ह्यूज गैप था एक डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम के बीच में, जिसको हमने एक ब्रिज के तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई करके इसको एलिमिनेट कर दिया है, जिसको हमने कहा है डेव प्लस ऑपरेशन। अब द कंपनीज आर हायरिंग द पीपल who knows DevOps methodology। DevOps टेक्नोलॉजी नहीं है, DevOps इज़ अ मैथडोलॉजी। एक मिथ है आज के टाइम में मार्केट में कि DevOps टेक्नोलॉजी है, बट DevOps कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, DevOps एक मैथडोलॉजी है जो दोनों को ब्रिज का काम करती है। उस बंदे को डेव की भी नॉलेज होती है, ऑपरेशन की भी नॉलेज होती है, तो ये गैप कम हो गया है। ठीक है, तो ये ब्रीफ था, वेरी वेरी ब्रीफ अबाउट द कोर्स। ओके, दिस इज़ वेरी ब्रीफ बट वी विल एक्सप्लेन आफ्टर फ्यू टाइम्स। मैं आपको एक बार कोर्स का दिखा देता हूँ क्या क्या हमारा कोर्स होने वाला है। ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आके जाके आप चेक कर सकते हो क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। सब कुछ ऑन वेबसाइट है। ठीक है, डेवऑप्स हो गया, AWS क्लाउड हो गया, आपका EC2 मशीन हो गई। ये मेरा मतलब पार्ट टाइम मैं राइटिंग भी करता हूँ, किसी को अगर बुक अगर पढ़नी हो, परचेज़ करनी हो तो अमेज़ॉन पे भी जाके वो रीड कर सकता है। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है मेरी बुक, ये मैंने खुद राइट करी है, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग बाय अंशुल गोयल। यू कैन सर्च आउट इन amazon.com एज वेल। ओके, EC2 के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। लाइनक्स हो गया, लाइनक्स का जितना भी सब कुछ होता है सब लाइनक्स पे ही अवेलेबल होता है। ये जितनी भी कॉन्सेप्ट हमने लिखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आई विल टीच यू इन वेरी डिटेल
कि अगर आपको इंटरव्यू ने कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया तो आपको उसका आंसर पता होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इंटरव्यू आपसे पूछे और आपको पता ना हो, अगर आपने मेरे नोट्स से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे। और गिट हो गया, गिट में जिसमें हम कोड अपना मैनेज करेंगे। आप अपनी स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल, डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल, मैनिफेस्ट फाइल सब आप इसमें स्टोर रखते हैं गिट में। डॉकर, आई विल टीच यू अबाउट डॉकर टेक्नोलॉजी। ओके, ये पार्ट होने वाले डॉकर में जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने मेरे मैं आपसे मॉक इंटरव्यू लूँगा आपके। ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिए तो आप कोई भी इंटरव्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन वो रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं। मैं भी लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे माइंड में सेट रहता है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, उससे ये 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन पूछूंगा, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं उस लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा उससे। ओके, ये एनसिबल होगा, इसमें ये हम पढ़ेंगे। एनसिबल हो गया, कुबरनेटिस हो गया आपका, इसमें क्लाउड वॉच हो गया आपका, IAM, दिस इज़ द पार्ट ऑफ AWS। ओके, टेराफॉर्म, मैवन, ये बिल्ड टूल है जिसके ज़रिए हम अपना कोड बिल्ड करेंगे। वो कोड हमारा बिल्ड हो जाएगा तो हम टेराफॉर्म के ज़रिए EC2 मशीन पे हम लॉन्च करेंगे और 3 टियर 2 टियर आर्किटेक्चर हम क्रिएट करेंगे, जो आज के टाइम में रियल टाइम सिनेरियो में रहता है। ये हमारे वेबसाइट पर रहेंगे जो हम स्टडी करेंगे। इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो बहुत डिटेल्ड आपका ये आपका हो गया आपका सिलेबस, जो हम 1 बाय 1 हम डेली पढ़ेंगे। और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 4 मंथ, 4 महीने में ये कोर्स कंप्लीट होगा। और जिसमें प्रोजेक्ट रहेंगे वो 58 प्रोजेक्ट हम रियल टाइम रखे हैं, कि अगर आपने 58 प्रोजेक्ट मेरे कर लिए तो आप कोई भी इंटरव्यू तो करने के बाद आप रियल टाइम में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में ये भी रहता है कि आप जैसे कोई और कंपनी आपने ज्वाइन करी है और वहाँ पे आपको रियल टाइम में कोई दिक्कत आ रही है, जॉब करने में दिक्कत आ रही है, मैनेजर ने आपको कोई टास्क दिया और वो टास्क आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमारे एक अलग से एक प्लान भी है जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे आपका टास्क कंप्लीट करने में। और 2-3 महीने में आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप खुद करने लग जाओगे। ये रियल में एक काफ़ी चैलेंज आता है बच्चों को, जो मैंने देखा है। वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, फिर जॉब के बाद उनसे जॉब नहीं हो पाती है, तो उन्हें शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। तो हमारी अलग टीम है जिसके ज़रिए हम हेल्प करते हैं उन बच्चों को, लेकिन इसका अलग से एक प्लान होता है। ठीक है, शुरू के 2-3 महीने के लिए आप हेल्प ले लोगे, बाद में फिर आप खुद ही करने लग जाते हो जो भी आपको मैनेजर आपको टास्क दे रहा होता है। डेली आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी इसमें। ठीक है, फ्रेशर एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स ऑल्सो, रिज्यूम हम बना के देंगे आपका। ठीक है, 1-to-1 डिस्कशन रहेगा मेरे साथ कि आपने क्या पढ़ा है और आपको आगे कैसे ग्रो करना है। वो 1-to-1 मेरा डिस्कशन आपके साथ रहेगा, 1 टाइम ओनली। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि जब आप इंटरव्यू दोगे तो मैनेजर, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि आपने डेली बेसिस पे आप क्या काम कर रहे हो, व्हाट इज़ योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डेली बेसिस। ओके, सो यू विल एक्सप्लेन द डे टू डे टास्क विच यू आर परफॉर्मिंग इन योर पास्ट कंपनी। Okay, I will make you understand how you can answer those questions if you don't know how to answer those questions. Okay, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी आप आंसर देना जानो, ये होता है। एक मैं आपको बताऊंगा तरीका, एरर एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें क्या होगा, जो भी अगर चैलेंज मुझे आएंगे एज अ डेवलपर पर्सन, सो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर पे उसको ट्रबल शूट करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको इशू ना आए। एरर्स हमेशा आते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करी जाती है लाइव में, वो मैं आपके सामने लाइव में आपके सामने करूँगा, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं एज अ डेवलपर पर्सन यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। ओके, डीलिंग विद द क्लाइंट कॉल्स, ये बहुत बड़ा इशू होता है जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है कि बच्चे चले जाते हैं, स्टूडेंट चले जाते हैं अपनी जॉब करने, उसके बाद जो फॉरनर्स होते हैं उनकी उसका जो स्पोकन जो वो होता है उनको समझ नहीं आता है, तो उसमें हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे उनका एक्सेंट का आंसर देना है, क्योंकि यहाँ का इंग्लिश का एक्सेंट और फॉरेन का इंग्लिश एक्सेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो कैसे उनको आंसर करना है कॉल्स का, वो मैं आपको बता दूँगा। रियल टाइम सिनेरियो होंगे, जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब रियल टाइम होंगे। इसमें 58 प्रोजेक्ट रहेंगे इसमें। ठीक है, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट आपके रहेंगे। अगर आपने इनको कर लिया ऑन डेली बेसिस तो आप
कोई भी इंटरव्यू, कोई भी जॉब आप क्रैक कर सकते हो 58 प्रोजेक्ट करने के बाद। और ये वो मैंने खुद वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करे हैं जो रियल टाइम में होते हैं। फ़र्क इतना है कि वो रियल टाइम नहीं है, बस है रियल टाइम की क्लोन। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डॉकर, कुबरनेटी, एंसिबल, टेराफॉर्म, गेटहब, ओके, मेवन, टेराफॉर्म, AWS। 50 क्वेश्चन ऑन ईच कॉन्सेप्ट, ऑन ईच टेक्नोलॉजी यू विल गेट। कि उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा तो वो अलग क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपने इतने क्वेश्चन कहाँ से दे दिया तो आपका जॉब लग जाएगा। करियर गाइडेंस पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है आपका, आप हिंदी एंड इंग्लिश में आप पूछ सकते हो। बहुत कंफर्टेबल विथ मी, इंग्लिश और हिंदी में आप मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल के लोग हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जीरो लेवल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको इसको करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर भी हम आपको अपनी कंपनी की साइड से प्रोवाइड कराएंगे कि आपने हमारे यहाँ 6 मंथ एज ए इंटर्नशिप आपने हमारे यहाँ करा है। और उतना 58 प्रोजेक्ट करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपने इतना काम कर लिया है। अभी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ सुमित पूछिए। सर जो इन्वायरमेंट रहेगा आपकी लैब्स का वो प्री डिफाइंड लैब्स होंगी या रन टाइम एज सैंडबॉक्स के थ्रू आप कराते हैं? हम कराएंगे आपका AWS क्लाउड पे। अच्छा, तो उसमें मतलब वो डिफाइंड लैब्स आप प्री डिफाइंड लैब भेजेंगे हमको कैनवस के थ्रू या एलएमएस के थ्रू या सेपरेटली होंगी वो? मतलब रिकॉर्डिंग क्लास क्यों कर रहे हो आप? नहीं नहीं सर, जो हम AWS जो हम सीखेंगे उसको हम जब परफॉर्म करेंगे हम्म। तो वो इन्वायरमेंट फ्री टायर अकाउंट से करेगा या हम कोई एलएमएस के थ्रू करेंगे इसमें जिसमें आप, प्री डिफाइंड लैब्स होती हाँ हैं? मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ। इसमें क्या करेंगे, हम आपका अकाउंट बनाएंगे आपका अपने कंपनी के अकाउंट पे, ठीक है। इस अकाउंट पे आपका एक हम यूज़र अकाउंट बनाएंगे। जो भी आपको बताया जाएगा वो आपको इसी अकाउंट पे परफॉर्म करना है जब तक आपका फ्री टायर अकाउंट नहीं है। तो इसका मतलब सर आप हमारे सारे टास्क को देख भी पाएंगे? हम आपके सारे टास्क को देख पाएंगे। जो जो टास्क अगर मैं जैसे 58 आपके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो 58 जो प्रोजेक्ट रहेंगे आप हमारे इस अकाउंट पे ही करेंगे आप अपने। ओके ओके ओके। क्योंकि सर मैं आई एम ए टीचर सर इन इंजीनियरिंग कॉलेज ना। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें बच्चों को हम खुद भी सिखाते हैं टेक्नोलॉजी को, तो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाते हम लोगों को। तो प्री डिफाइंड लैब्स होती है तो बच्चा केवल उतनी ही चीजें कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए उसकी जगह आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करते हैं कि सैंड बॉक्स लेते हैं, है ना। बहुत सारी कंपनी जैसे विजन का, है ना, तो ऐसे बहुत सारे सैंड बॉक्स आते हैं, तो उसमें डिफाइन, उसमें कोई बिलिंग नहीं आती, है ना, तो फिर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो कॉस्टली पड़ता है तो इसलिए वो ले नहीं पाता। तो ये मैं आपसे बस एक डिफरेंस पूछना चाह रहा था। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन तो आप बताएं। हेलो अंशुल सर। हेलो। दिस इज वैभव। एक्चुअली मुझे ये बात पूछनी है कि जो हमारा प्लेसमेंट सेल है, जो मतलब इंटरव्यू कॉल्स वगैरह जो होते हैं, हाँ, वो पहले मंथ से चालू हो गए या डायरेक्ट आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स से चालू हो गए, ये बात पूछनी है। ये आपका चालू होगा जब आपके 2 महीने आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि क्या क्या इशू है मालूम है क्या? आई एम वर्किंग करंटली वर्किंग एंड आई हैव 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस एंड करंटली वर्किंग द DevOps itself, so I need a placement cell। हमारी अपनी अलग, तो हमारा अपना एक ग्रुप रहता है व्हाट्सएप पे जिसमें हमारा प्लेसमेंट का ही सिस्टम रहता है। जो भी ओपनिंग हमारे पास आती हैं तो हम उसमें अपडेट करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे जैसे कॉल आती रहेंगी वैसे वैसे आप उसमें इंटरव्यू अपना देते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, कोई बात। अगर वो अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए हमें भेज देते हैं या सिर्फ अप्लाई होगा इसके बाद? हाँ, इन सॉरी।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने आपने जो ग्रुप में भेजे ना जो इंटरव्यू के लिए, तो वो अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा या सिर्फ मतलब स्किप होते जाए, जैसे कि हम नौकरी पे अप्लाई करते हैं तो? नहीं, अगर जैसे ओपनिंग होगी तभी हम भेजेंगे, वो आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपका हम्म। इंटरव्यू होगा डेफिनेटली। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, कोई बात, थैंक यू। मैं इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको इस अकाउंट का एक्सेस दूंगा। इसमें जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो इसमें हम आपके करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप अपना EC2 मशीन बना सकते हो, एक लाइनेक्स मशीन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी मशीन चल रही है मेरी, तो इसमें आप विकास आप म्यूट कर लीजिए बस 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपका क्वेरी लेता हूँ। श्योर श्योर। बस 1 मिनट का समय दीजिए आप। तो गाइज एक बार स्टेप देख लो कैसे परफॉर्म करना है। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, एक्सेस ID पासवर्ड भी आपको दे दूंगा, ताकि आप इसमें जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पेज पे जाना है, EC2 यहाँ पे सर्च करोगे आप EC2। जब आप EC2 सर्च करोगे तो यहाँ पे सर्च आ जाएगा EC2 मशीन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करोगे इंस्टांस रनिंग पे, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस। इंस्टांस क्या होता है, एक मशीन होती है लाइनेक्स मशीन, जिस पे हम सारे प्रोजेक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाला अंशुल नाम से एक मैं लाइनेक्स मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जैसे मैंने सर्च करा उबुंटू, रेड हैट, सूसे, काली, कोई भी मैं ले सकता हूँ। मैंने उबुंटू सर्च कर लिया यहाँ पे। उबुंटू सर्च करने के बाद ये रहेगा आपका फ्री टियर, इसे आप फ्री टियर ही रखना। बाकी मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना है, लेकिन आप अभी फ्री टियर ही लेके चलना। और की पेयर लॉगिन आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट पे जाना है अपना, एक की पेयर बना लो यहाँ पे ANSH। मैंने जैसे क्रिएट कर लिया ANSH, उसके बाद क्रिएट की पेयर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उनके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए। जो जो मैं डेली आपको बताता रहूँगा वो आपको डेली प्रैक्टिकल करना होगा, और वो इसी अकाउंट के थ्रू आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपका की पेयर आ गया अंश। यहाँ कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, बस आपको कर देना लॉन्च इंस्टेंस, सिंपल। एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखना फिर आप कर लोगे। सिंपल 2-3 क्लिक करने हैं और आपकी लाइनेक्स मशीन क्रिएट हो जाएगी, और कुछ नहीं करना आपको। किसी भी लैपटॉप से किसी भी डिवाइस से आप इसको ओपन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये पेंडिंग दिखा रही है, मैंने मशीन अभी क्रिएट करी लाइनेक्स मशीन, तो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, तो 1 से 2 मिनट का ये समय लेगा आपका, तब ये मशीन आपकी क्रिएट हो जाएगी। अभी सब अपने अपने यूज़र नेम बता देना, ताकि मैं आपके लिए एक अकाउंट क्रिएट कर दूंगा, तो आप इस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। जिन जिनको एक्सेस चाहिए वो अपना यहाँ पे अपना यूज़र नेम आप अपना फुल नेम लिख दो। मैं आपके लिए एक यूज़र नेम बना दूंगा, ताकि उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एक आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा व्हाट्सएप, हम आपको हमारी टीम आपको कर देगी। उसके ज़रिए आप इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो, अकाउंट को। चैट में अपने फुल नेम आप भेजो जिन जिनको अपना अकाउंट क्रिएट करवाना है। ये इनिशलाइज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कनेक्ट। जिन जिनको प्रैक्टिकल करना है वो अपने अपने नाम यहाँ पे लिखते रहें, अपने चैट में अपना नाम लिख दो जिन जिनको प्रैक्टिकल करने हैं। ये आपकी लाइनेक्स मशीन क्रिएट हो गई है, ठीक है। जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे ऑन डेली बेसिस, वी विल परफॉर्म ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी एक का अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, एक्सेस करके देखना। जैसे प्रशांत राज का मैं ले लेता हूँ, क्या नाम है, प्रशांत। सभी के अकाउंट क्रिएट कर दिए जाएंगे और वो सब एक्सेस कर सकते हैं अपने लिंक के जरिए।
पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। EC2 का एक्सेस दे रहा हूँ, बस आप EC2 पे ही काम कर सकते हो। ठीक है प्रशांत, ये आपको URL हम सेंड कर देंगे। इस URL पे जाना, आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ सभी के लिए। ये URL आपको व्हाट्सएप कर देंगे, यहाँ पर आपको जाओगे, यहाँ जाने के बाद आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना होगा बस। उसके बाद आप मशीन अपनी क्रिएट कर सकते हो और अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका प्रशांत राज, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड होएगा, पासवर्ड आप रीसेट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी EC2 इसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये व्हाट्सएप मैं कर दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अपने अपने नाम बता दो जिन जिनको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उनके यूज़र नेम बना दूंगा मैं। अगर आपके पास खुद का AWS अकाउंट है दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो मैं एक आपका अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। अब आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, क्या क्या आपकी क्वेरी, और जो जिसके नाम है फुल नेम अपने चैट बॉक्स में आप टाइप कर दो। यस विकास, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? Hello, हाँ प्रशांत। I am Prashant this side. So I'm network engineer. So I want to know like as a network engineer, is it possible to change my career? Like like कि अभी ऐसा हो रहा है कि ना कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन काफी हो रहा है, तो like is it any possible कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो? Like you said कि I will give you 6 month internship later and everything. तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे तो कुछ इशू आ जाए? नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं आता है। अगर आपको काम करना आता है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और रही बात कि अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता भी है तो वो कोई ये चेक नहीं करता है कि आपका क्या काम कर रहे थे, वो ये चेक करते हैं कि आपकी डेजिग्नेशन क्या थी। मान लो हर कंपनी का अपना होता है, जैसे किसी कंपनी में आप SCL में जाते हो, TCS में जाते हो, वहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर होता है, GET होता है, स्पेशलिस्ट होता है। उसके अंदर ये नहीं लिखा होता है कि आप किस डोमेन में आप काम कर रहे थे, आप जावा में काम कर रहे थे, पाइथन में काम कर रहे थे, डेवऑप्स में काम कर रहे थे। ठीक है, तो आप कंपनी को हमेशा एक्चुअली एयरटेल इस पे काम नहीं करता है, डेवऑप्स पे काम नहीं करता है, AWS पे काम नहीं करता है, तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि तब तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना मुझे। नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई इतना डीपली नहीं जाता है कि किस में काम नहीं कर रहा था, किस में काम नहीं कर रहा था। ये काम HR का होता है। HR कभी ये नहीं चाहेगा कि आप उनका जो एम्प्लॉय है वो निकल जाए। ठीक है, वो काम टेक्निकल पीपल का होता है। अगर आपने टेक्निकल पर्सन का अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, HR की साइड से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ऑलराइट। आपको बस काम करना आना चाहिए कि उन्होंने अगर मैनेजर ने आपको टास्क दिया तो काम कर सको। अगर नहीं काम कर पाओगे तो हो सकता है, अगर काम कर लोगे, जस्टिफाई कर लोगे आप अपना काम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी HR की साइड से। और आज के टाइम में वैसे भी लोग डेवऑप्स में स्विच कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन से। सबके अलग अलग डोमेन होते हैं लेकिन सब डेवऑप्स में जा रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत अभी तक मैं देखी नहीं है। हाँ विकास, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और किसी का कोई डाउट है और वी कैन रैप अप द कॉल। और क्लास के बाद जो भी रिकॉर्डिंग होगी आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, उस पर आप एक बार रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट है तो हम कनेक्ट करेंगे कल दोबारा, तो आप उसमें पूछ सकते हो। और जिन जिन बच्चों के यूज़र नेम आए उनको लिंक सेंड कर दी जाएगी ताकि वो AWS अकाउंट अपना एक्सेस कर सके और अब लाइनक्स मशीन अपनी
क्रिएट कर सकें। ठीक है गाइस, if you have any no doubt, so we can wrap up the call. We will connect again tomorrow at 9 p.m. Okay, thank you guys. Bye bye.